جی ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دی پاکستان ڈیجیٹل اور میں ہوں مدثر غفور۔ ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر وقار مہدی صاحب کے ساتھ، جو ایڈوائزر ٹو سی ایم بھی رہے ہیں اور اس ٹائم سینیٹر بھی ہیں اور پیپلز پارٹی کی کراچی کی سیاست کے حوالے سے ایک اہم رول بھی ادا کر رہے ہیں۔ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں، مختلف سوالات کرتے ہیں کرنٹ افیئر پہ۔ وقار مہدی صاحب بہت بہت شکریہ۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ گزشتہ دنوں آپ لوگوں کی پریس کانفرنس بھی ہوئی تھی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف پاکستان جو آئے ہیں وہ ایک ڈیل کے ذریعے آئے؟ دیکھیں جی، ہم تو بہت پہلے سے کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب اپنے وطن واپس آئیں، لیکن وہ کوئی وجوہات تھی، ان کو پتہ ہوں گی وہ وجوہات نہیں آ رہے تھے، لیکن اب آگے ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں، ان کا پاکستان میں اپنے وطن واپسی پر خیر مقدم کرتے ہیں۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی ایک آدمی کی وجہ سے الیکشن کو ملتوی ڈیلے نہیں ہونا چاہیے۔ اب نواز شریف صاحب آ گئے ہیں، الیکشن کمیشن کو چاہیے الیکشن ڈیٹ کا اناؤنس کرے، اور ہمیں تو افسوس اس بات کا بھی ہے کہ نواز شریف صاحب 2 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں اس ملک کے اندر، لیکن انہوں نے آنے کے بعد جو جلسہ کیا اس میں انہوں نے الیکشن کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، الیکشن کی تاریخ دینے کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ایک پاکستان کی جماعت کے لیڈر ہیں، تو ان کو سب سے پہلے یہ چاہیے تھا کہ الیکشن کی تاریخ کے لیے ڈیمانڈ کرتے کہ الیکشن کی تاریخ کا اناؤنس کریں۔ ہمیں اس پہ تھوڑے سے شک و شبہات ہیں، اور نواز شریف صاحب سے ہمیں توقع تھی کہ وہ یہ کریں گے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ لیکن جس طرح آپ نے بتایا، اور کہ نواز شریف صاحب جو آئے ہیں، اب مجھے نہیں معلوم کہ کون سے ڈیل ہے اور کون سے معاملات ہیں وہ آئے ہیں، لیکن چلے آئیں، جس طرح بھی آئیں آ گئے ہیں، ہم کو کسی جگہ بھی کسی مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑے، کوئی بھی انتظامیہ جو ہے اس کو رکاوٹ نہ ڈالے اور اپنی انتخابی مہم کو بھرپور دے جائے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑے جو محتسب ہیں وہ عوام ہیں، عوام سے بڑا احتساب کوئی نہیں کرتا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ عوام میں لوگ جائیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اسی طریقے سے مواقع فراہم کیے جائیں جس طرح سے نواز شریف صاحب کی پارٹی کے کیے جا رہے ہیں۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ بات کرتے ہیں، صوبہ سندھ کے اندر بھی ہم نے کسی میں رکاوٹ نہیں ڈالی ہے، سب لوگ آزادی کے ساتھ، یہاں پہلے بھی کمپین چلائی تھی انہوں نے، ہماری 3 دفعہ حکومت رہی ہے، ہم نے کبھی کسی کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالی۔ اس کو ہم نے کہا ہے کہ فیئر اینڈ فری طریقے سے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ الیکشن فیئر اینڈ فری ہونا چاہیے، غیر جانبدار، منصفانہ، شفاف ہونے چاہیے، اور کسی بھی قسم کی دھاندلی کو پاکستان پیپلز پارٹی کبھی برداشت نہیں کرے گی۔ اس الیکشن میں وہ آر ٹی ایس والا ڈرامہ نہیں ہونا چاہیے، جو کوڈ آف کنڈکٹ جو سیاسی جماعتیں طے کریں اس پہ عمل ہونا چاہیے، اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ بار بار مطالبہ کر رہی ہے کہ الیکشن کمیشن سے کہ وہ تاریخ کا اعلان کریں۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ مسلم لیگ کے لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں تاریخ کو الیکشن ہو جائیں گے، فلاں، ان کو کیسے پتا ہوگا؟ الیکشن کمیشن کا کام ہے نا، یہ کسی وزیر اعظم کا کام نہیں ہے، کسی جماعت لیڈر کا کام نہیں ہے کہ وہ کہیں گے جی فروری کے پہلے ہفتے میں ہو رہے ہیں، ان کو کیسے پتا؟ الیکشن کمیشن بات کرے نا، ہم تو ان سے کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس وقت شیڈول دے دے۔ ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس چل رہا ہے، ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس میں جو ڈیلیمیٹیشن ہوئی ہے اس پہ بہت سارے اعتراضات بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی بہت سارے ریزرویشنز ہیں، مختلف جماعتوں کے بھی ہیں، اس کو جلد از جلد مکمل کرنا چاہیے۔ دیکھیں، ایک ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس اگر 2022 میں ہوا، وہ ہوا 2017 کی مردم شماری کے مطابق، ایک ابھی یہ کیا گیا، جبکہ ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اپنی اسمبلی جو تھی وہ 3 دن پہلے کیوں توڑی؟ اس لیے کہ وہ 90 دن میں الیکشن ہو۔ بات یہ تھی نا، 90 دن میں الیکشن ہو کی بات کرے تھے کہ 1 مہینہ مل جائے، کیونکہ اگر مدت پوری ہونے پہ ختم ہوتی تو 4 دن، اور جب 1-2 دن پہلے 3 دن پہلے کی تو 90 دن کے اندر۔ تو اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مسلم لیگ نون 90 دن کے الیکشن سے کیوں بھاگ رہی تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی پہلے دن سے ہی مطالبہ کر رہی ہے کہ آئین پریویل کرتا ہے، آئین یہ کہتا ہے، الیکشن ایکٹ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن آئین یہ کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے۔ لیکن ہم آج بھی الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر الیکشن شیڈول کا اناؤنس کریں، الیکشن شیڈول دیں، تاکہ جو ایک گوما گو کی کیفیت ہے، غیر یقینی صورتحال ہے، اس سے لوگوں کو نکالا جائے، اور لوگ جو ہیں تاکہ اپنے سیاسی عمل میں، انتخابی عمل میں چلے جائیں، اور جا کے یکسوئی کے ساتھ اپنی الیکشن کمپین چلائیں۔ ہم پھر بھی بار بار مطالبہ کرتے ہیں، پرزور مطالبہ کرتے ہیں، اور ہم جو پاکستان پیپلز پارٹی
अभी अवामी रब्ता मुहिम शुरू करेगी और उसमें यही उनका जो पहला मुतालबा ये होगा कि इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंस किया जाए। वकार साहब ये बताइएगा कि इलेक्शन वक्त पर होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जब माजी में पंजाब हुकूमत से तहरीक इंसाफ ने इस्तीफे दिए तो तब पीपल्स पार्टी ने 2 महीने के अंदर इलेक्शन का मुतालबा क्यों नहीं किया, जबकि आज उसको वक्त पर और आइन पर इलेक्शन का मुतालबा जो है वो कर दी। देखिए जी, बात ये कि उसकी वजूहत है। अगर वो इलेक्शन होते तो सूबाई असम्बली के मेम्बरान मुंतखब हो जाते तो कौमी असम्बली के इलेक्शन पर असर पड़ता उसका। तो हमने इसलिए कहा था कि चारों सूबों में एक साथ इलेक्शन कराए जाए। हमारा मकसद ये था। इमरान खान साहब तो अपनी सियासत खेल रहे थे, उन्होंने जो है अपनी पार्टी के बहुत से लोगों के मना करने के बावजूद असम्बली तोड़वा दी, पंजाब की भी पख्तूनख्वा की भी। और दूसरी बात तो ये है ना कि पंजाब में इलेक्शन की पख्तूनख्वा की तो कोई डेट नहीं थी, पंजाब में क्यों बात होगी, पख्तूनख्वा की तो कोई डेट नहीं थी। तो हम उस वक्त ये बता रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस इलेक्शन में अगर होते उसकी भी हमने तैयारी की थी। ये भी नहीं कि हम उससे क्यों भाग रहे थे, हमने अपने उम्मीदवार वो जो है वो सिलेक्ट कर लिए थे, इलेक्शन का वो शेड्यूल आता था हम उम्मीदवार भी अनाउंस करते। लेकिन हमारा मुतालबा यही था कि इलेक्शन जो है चारों सूबों में एक साथ होने चाहिए, ताकि किसी जगह सूबाई के हो जाएँ और कौमी के ना हो तो ये बड़ा अजीब सी सूरत होती। तो हम ये बार बार बात कर रहे थे। तो वो इलेक्शन कमीशन का काम था और सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो फैसला था उसके बाद, तो वो सूरत आपके सामने है। लेकिन अभी भी हम कह रहे हैं कि इलेक्शन वक्त पे हो जाएँ, जनवरी के आखिरी हफ्ते में जो है ज़्यादा हो जाएँ, क्योंकि देखिए ये इलेक्शन जनरल इलेक्शन होंगे तो आगे सेनेट का इलेक्शन है, मार्च में आधी सेनेट खत्म हो जाएगा, तो उसके इलेक्शन भी होना है। तो वो इलेक्शन की जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो सूबाई असम्बली है और कौमी असम्बली भी है जो समाजी सीटें होती हैं। तो हम ये कहते हैं कि इलेक्शन जनवरी में हो जाने चाहिए ताकि फरवरी में ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाए, हुकूमत से बन जाए, क्योंकि मुंतखब हुकूमत ही जो होगी ना वही इस मुल्क के जो मौजूदा मसाइल हैं, जो सूरत है, जो बुरान है, उससे मुंतखब हुकूमत ही निकाल सकती है। और उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, निगरान हुकूमत के बस का काम नहीं है। निगरान हुकूमत ने जो अभी तक जो सूरत पैदा की है उससे लोग बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। महंगाई की जो सूरत बढ़ती जा रही है, दूसरी चीज़ें हैं वो बहुत परेशान है। वही मौजूदा मसाइल का हल जो है वो इंतखाबात हैं और मुंतखब हुकूमत है। अच्छा, एक हफ़्ता पहले आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी यहाँ वापस कराची को जो है वो माजी में ले जाया जा रहा है और MKM को लाने की जो है वो कोशिश हो रही है दीगर सियासी जमातों को। तो जब पीपल्स पार्टी ने इतने काम किए हुए तो इतना मतलब कि इख्तलाफ क्यों कराची के अंदर सबको सियासत करने का? नहीं, हम तो कहते हैं सबको हक हासिल है, लेकिन बात यह है कि किसी को गैर ज़रूरी सहारा ना दिया जाए। हम ये कहते हैं कि आप ओपन छोड़ें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ऐसे हथकंडों से ना घबराती है ना मजबूत होती है। हम लोगों में जाएंगे, लोगों को हमारा माजी भी पता है, हमारा हाल भी पता है और उनको ये पता है कि मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिलीवर करेगी, ठीक है ना। लेकिन किसी किस्म की धांधली जो है वो कराची शहर में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ना लोग बर्दाश्त करेंगे। सियासी जमातें तो मिलेगा, लोग ही नहीं बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी को किसी का वोट चुराने नहीं दिया जाएगा। हम ये कहते हैं कि जिसका वोट है वो वोट डाले, जिसको भी डाले सच्चाई से डाले, जिसको भी पसंद करता है वो डाले, हम इस पर भी रुकावट नहीं। लेकिन हम अपना मौक़िफ़ रखेंगे इलेक्शन के अंदर लोगों के सामने, और लोगों के सामने रखा भी है, उनको हमारा मौक़िफ़ पता भी है, हमने डिलीवर किया है। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि कराची की जो 22 कौमी असम्बली नशिस्तें हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक्सरियत नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह जीतने में कामयाब होगी। और हम फिर कहते हैं कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री होना चाहिए, किसी को भी किसी ज़रिए से कोई गैर ज़रूरी तौर पर सहारा नहीं देना चाहिए। अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो जाते हैं तो क्या फेडरल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बना सकती है? इंशाल्लाह तो है, फेडरल में भी इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि पंजाब से भी हमारे माजी के मुकाबले में ज़्यादा नशिस्तें होंगी, और सूबे सिंध के अंदर भी इंशाल्लाह जो इलेक्शन होगा उसमें भी 61 कौमी असम्बली नशिस्तें हैं, तो उसमें अक्सर नशिस्तें इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास होंगी, और इस तरह बलूचिस्तान से भी और KPK से भी। तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चारों सूबों से जीतेगी, चारों सूबों के जो अवाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एतमाद करेंगे। तो इंशाल्लाह हमें समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है अगर उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं डाली गई तो अक्सरियती पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो फिर अगले वज़ीर आज़म कौन होंगे? आसिफ अली जरदारी होंगे, दीगर होंगे, या नौजवान बिलावल अली? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ही इंशाल्लाह वज़ीर आज़म होंगे इस पाकिस्तान के। उन्होंने
बाईस वज़ीर ख़ारजा जितने खूबसूरती के साथ और नौजवान वज़ीर ख़ारजा के तौर पर जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के इमेज को दुनिया भर में बेहतर किया है। माजी में जो पाकिस्तान का इमेज ख़राब किया गया था दुनिया की नज़रों में, उसको बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपनी सिफारिशकारी के ज़रिए, बेहतरीन सिफारिशकारी के ज़रिए उसको बेहतर किया और यूरोपियन कंट्रीज़ को, अरब कंट्रीज़ को वो करीब लाए हैं। और उसका आपने देखा भी कि वो साबिक़ वज़ीर आज़म ने असम्बली के फ्लोर पे जो जिस तरीके से बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जो काविशें थी, जो खिदमत थी, उनका इतराफ़ भी खुद उन्होंने किया है। जबकि दूसरी पार्टी ताल्लुक़ थे तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने डिलीवर किया है, बेहतर अंदाज से सिफारिशकारी चलाई है। और FATF की जो ग्रे लिस्ट है उसको भी निकालने में बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ही बड़ा किरदार है। और दूसरा आपने देखा कि उनकी दावत पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल आए, उन्होंने सैलाब के इलाकों का दौरा भी किया और बदतरीन सूरत हाल इससे दो चार था। और हम यहाँ पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की हिदायत पर सिंध हुकूमत जो साहब को मारी थी, वो 21 लाख घरों की तामीर कर रही है यहाँ पे। और जिसके फंड जो थे वो फेडरल गवर्नमेंट ने रोक दिए थे, अब वो शुक्र है कि शायद बहाल होना शुरू हो रहे हैं वो, तो हम उस पर भी काम कर रहे हैं ताकि उनको भी उनकी जगहों पर जहाँ उनके घर थे उनको उसी जगह पे उनको हम बसा के उनको मांगा मुल्क में मांग दे रहे हैं। तो मुझे समझते हैं कि इस मुल्क का जो मुस्तक़बिल है, इस मुल्क के जो मसाइल हैं, उसका हल सिर्फ उसे बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बाद है, पाकिस्तान के आइंदा वज़ीर आज़म। बिलावल भुट्टो नौजवान सियासतदान है, तो क्या पीपल्स पार्टी इस बार नौजवानों को भी टिकट देने जा रही है? नौजवानों का भी 60% वोट जो है वो इस टाइम मुल्क के अंदर नौजवानों का मौजूद है, तो क्या आइंदा इलेक्शन में नौजवान भी खड़े होते हैं? पिछली असम्बली में भी कई नौजवान थे जो कि कौमी में भी, उस में भी इंशाल्लाह अभी भी पार्टी ने को अप्लाई किया तो कंसीडर करेंगे। और इंशाल्लाह आपको नौजवान भी नज़र आएंगे, बुजुर्ग भी नज़र आएंगे, कुछ दरमियानी एज के लोग भी नज़र आएंगे। तो इंशाल्लाह आपको एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो सूबाई असम्बली में भी और कौमी असम्बली में भी नज़र आएंगे। वकार साहब ये बताइएगा कि माजी में सेनेट और सेनेट के इलेक्शन जो है वो मैनेज होते रहे और इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग आके कभी कैमरे निकल रहे, तो क्या अब वो थोड़ी बहुत अंदर तब्दीली आई है, चेंजिंग आई है आप सेनेटर के ऊपर, या एक इंस्ट्रक्शन होती थी कि जी आपने इनको वोट देना है, चेयरमैन सेनेट आ रहे हैं? नहीं जी, देखिए जी, हम तो पार्टी के कमिटेड वर्कर हैं, हम पे तो कोई दबाव नहीं डाल सकता, कितना भी दबाव डालेगा, लेकिन हम अपने लीडरशिप के हुक्म पर जो भी जिसको भी नामजद करेंगे चेयरमैन सेनेट के लिए, डिप्टी चेयरमैन, उसको वोट करेंगे। और माजी में भी हमारे लोगों ने ऐसा किया है। इसकी ज़िम्मी चीज़ें कंडे इख्तियार किए गए माजी में, तो उसकी तहकीकात भी हुई, लेकिन आपने देखा वो कैमरे गायब किए गए, चीज़ों को ख़राब भी किया गया उस वक्त। लेकिन हम समझते हैं कि अब कोश के नाखून लेने होंगे लोगों को। वकार साहब ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी की मौजूदा तनकीद से तो ये लगता है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी फिर माजी की सियासत में जा रही है। देखिए जी, बात ये कि अगर कोई बात करेगा तो उसका जवाब तो फिर देना पड़ता है। और मुस्लिम लीग के कुछ नागवंदेश लोगों ने कुछ बातें की और वो मुज़ाकरखेज़ थी बातें, जिसका हमने उनको प्यार से जवाब भी दिया। और हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं, हमने तो आपको नवाज शरीफ साहब को हमने वेलकम किया है, और हम ये कहते हैं कि किसी एक शख्स की वजह से इलेक्शन का मुलतवा नहीं होना चाहिए, देर नहीं होनी चाहिए। हम तो बार बार कह रहे हैं कि इलेक्शन कराओ, यही हमारा पहला मुतालबा हमारा यही है। तो मुस्लिम लीग के लोग भी जो हैं वो जो उनके समझदार लोग हैं, वो अपने जो उनके अपने साथी हैं, वो शायद सियासी माहौल को ख़राब होने से बचाएंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी, आपको मालूम है कि किसी के बोतान दराजी नहीं की है। हाँ, अगर कोई बात करता है तो उसको हमें प्यार से जवाब देना पड़ता है। कराची के अंदर ख़ास तौर पर पानी का मसला है, इलेक्ट्रिक का मसला है, तो आप लोग हुकूमत में भी थे, मौजूद भी हैं और आइंदा भी जो नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी, तो ये मसाइल हल कैसे होगा? इदारे जो हैं वो जबूहाली का शिकार भी हैं, अवाम अलग परेशान है, मुआशी इक़्तिसादी सूरत हाल जो है वो डूब गई, अब वो बेहतरी की तरफ आ रही, तो इन सब चीज़ों पर आपका एक क्या तज्ज़िया होगा? जी, जमा प्लान हमारे पास है इसका, और इंशाल्लाह अभी जैसे K4 पे काम हो रहा है, वहाँ से पहले मरहले में 265 MGD पानी ऐड होगा, इसके अंदर उस पर काम जारी है। और वो जो है वो सबका सिंध हुकूमत और भारत हुकूमत ने मिलकर उसको प्रोजेक्ट किया था, उस पर काम जारी है। और हम समझते हैं कि 2024 तक वो मुकम्मल हो जाएगा और वो पानी की फराहमी किसी हद तक बेहतर हो सकेगी।
कराची को जो पानी की डिमांड है वो 1200 MB और कराची में 2 सोर्सेज से पानी आता है, एक इंटर सोर्स एक हब सोर्स से। तो वो पानी की जो शॉर्टेज है 50% शॉर्टेज है, 60% शॉर्टेज है, उसकी कमी को इंशाल्लाह पूरा करने के लिए हम मुख्तलिफ सोर्सेज पे काम कर रहे हैं। हमारी ये जो है वो वर्ल्ड बैंक के साथ डिसैलिनेशन प्लांट की बात चल रही है, क्योंकि कराची के जो इस वक्त 3 ज़िले हैं, किमाड़ी ज़िला, डिस्ट्रिक्ट जनूबी या उसको साउथ कहते हैं, और डिस्ट्रिक्ट मरीर का इब्राहिम मरीर, जिसको पार्ट ऑफ कोलगी के साथ में अटैच है, ये समंदर पे वाक़ हैं, समंदर के साथ हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि इन ज़िलों को डिसैलिनेशन के साथ मुंसलिक किया जाए, ताकि यहाँ से अगर हमें 600-500 MGD पानी मिलता है तो ये आधा शहर जो डिसैलिनेशन में कन्वर्ट हो सकता है। तो क्योंकि ये एक काफ़ी महंगा प्रोजेक्ट होता है, तो उसमें हमने मुख्तलिफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और मुख्तलिफ जो इस के हवाले से कंपनियाँ हैं, इदारे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि इसको हम राइट, क्योंकि पानी